So before getting into the discussion, this is actually yesterday's goal, but again this is our today's goal as well. So we will understand this, and at the same time we have another goal that we have here, that we will try to cover up this thing as well. So the first thing is, what is Linux, right? So Linux is operating system. Okay, I got it. Linux is operating system, but what is operating system? What do you mean by operating system? So in simple layman's term, operating system is something that is sitting in between the user and your hardware. तो हम इसको थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेट से तुमने एक लैपटॉप खरीद किया, एंड आपने एक लैपटॉप खरीद किया. अब उसके साथ आपको एक लैपटॉप मिलेगा, कीबोर्ड या जो भी हो सब एक बक्सा मिल जाएगा. अब आपको फोटो उसमें स्टोर करनी है. कैन यू स्टोर द फोटोज डायरेक्टली इन द हार्ड डिस्क? नो, यू नीड समथिंग that do that work for you, right? So what you need the operating system. So we have seen a lot of time there are multiple operating system, like this is the Windows operating system that we have been using since last couple of years. The same that we have the Windows operating system, Linux is also operating system. So if you want to store anything in the Windows operating system, you just आप पेन ड्राइव उसमें लगा दोगे, फोटो यहाँ से वहाँ आप स्टोर कर दोगे, right? Under the hood, photos or whatever your important files are getting stored in your hard disk, right? So you cannot directly go to your hard disk and save the photo until and unless you have something. So in this case we have the operating system. So this is what I'm showing is the Windows operating system, and we are here to learn the Linux operating system. So what is the difference between Linux and Windows? So there is no much difference in the Linux and Windows. The difference is that Windows में आपको सब UI मिलेगा और Linux में आपको सिर्फ मिलेगी ब्लैक स्क्रीन. एंड जैसे ही आपने ब्लैक स्क्रीन देखी, बत्तियाँ गुल होनी चालू हो जाती है. सो लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट द फाइल, यू जस्ट क्लिक हियर एंड नया टेक्स्ट फाइल, इसको नाम तो जो देना है इसमें कुछ तो डालो, इसको फाइल बोलो, सेव एज बोलो, या खाली सेव बोलो. फाइल इज सेव, डन, राइट? अब आई वांट टू क्लोज दिस प्रोग्राम. हाउ यू यूजुअली डू इट? just clicking ये लाल वाला बटन, ये बटन दबाया, बंद. But when it comes to Linux, how will you open the file in Linux? Do you know how to open the file in Linux? No. Why? Because you don't know the command, right? So for that we are here to learn the Linux. So in layman's term, Windows is also operating system, but Windows वालों ने क्या किया, आपको सब बनाया हुआ दे दिया है. आपको प्रोग्राम ओपन करना है तो यू जस्ट नीड टू डबल क्लिक, यू जस्ट नीड टू मिनिमाइज करना है तो ये बटन दबाओ, मैक्सिमाइज करना है तो वो बटन दबाओ, इसको बंद करना है ये बटन दबाओ, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू लिनक्स आपको ऐसा कहीं पर बटन मिलेगा नहीं मिलेगा. देन हाउ will you open the file or how will you close the file? So for that you need to run some commands, right? अब हमने पूरी जिंदगी पर विंडोज ही यूज किया है और हम विंडोज के इतने हैबिचुअल है ना कि हमको लिनक्स ना हजम नहीं होती बात, राइट? सो दैट्स वाई ना हमने उसको कभी यूज ही नहीं किया, तो उसकी अवेयरनेस नहीं है, तो वो चीज़ हमें ना बहुत डिफिकल्ट लगने लगती है. यार ये क्या है. तो लिनक्स इज अगेन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. यू विल हैव टू डील विद दैट ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग सम कमांड्स, गेट द आउटपुट एंड वर्क विद the Linux operating system. अगर आप कहते हो कि why Linux, why not Windows, right? So Linux around the world there 100% supercomputers are built on the top of Linux only. 95 to 98% servers are hosted on Linux operating system, right? So अगर आप जॉब के बारे में सोचोगे, अगर मैं Windows सीखता हूँ तो मुझे जॉब 2% मिलेगी, अगर मैं Linux सीखता हूँ तो जॉब मुझे 95% के तकरीबन मिल जाएगी, मेरी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है. दैट्स वाई वी आर हियर टू लर्न द लिनक्स. एंड ट्रस्ट मी, लिनक्स इज अ कोर ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजीज, राइट? It's a core of all technology. So that's why it is kind of mandatory part that you need to learn the Linux. Once you have the Linux skill sets, you are, believe me, you are expert. अगर आपके पास कमांड लाइन एक्सपर्टीज हो, you are superb and you are expert. You will be extraordinary when you are sitting with your team, with your colleagues in the organization. So हमने short में समझा what do you mean by operating system. Again, you cannot store anything directly in the hardware, in this case my computer, right? For that you need something which is called as operating system. So we have seen that what is the difference between Linux and Windows. Windows is something that everything is graphical, right? This is graphics, everything is graphics. If I want to open this program, I just simply click on that program, it will get open. If I want to close the program, ये लाल वाला बटन दबा दिया, बंद हो गया, right? तो हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं, लिनक्स की हिस्ट्री को समझते हैं. अब लिनक्स की हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट. सो लिनक्स वाज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ मिनिक्स विच इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. बट यूनिक्स में कुछ फ्लॉज थे. यूनिक्स में फ्लॉज ये थे कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर नहीं थे एंड मल्टीटास्किंग नहीं थी. नाउ व्हाट डू मीन बाय मल्टीटास्किंग? सो आई हैव दिस प्रोग्राम ओपन, राइट? एक मेरा ये नोटपैड++ का प्रोग्राम ओपन है, यहाँ पर मेरा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का एक प्रोग्राम ओपन है. तो मैं ये दो चीज़ें एट अ टाइम कर रहा हूँ, राइट? दो टास्क एट अ टाइम चल रहे, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग. देन व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी यूजर सिन? एट द सेम टाइम आई कैन लॉग इन टू दिस लैपटॉप
टू यूज़र कैन साइमल्टेनियसली और टू यूज़र एट अ टाइम कैन लॉग इन टू दिस लैपटॉप। बट यूनिक्स में ये फंक्शनैलिटी नहीं थी 1991-92 के अराउंड। तो जिन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई उनका नाम है लिनक्स टोरवाल्ड्स। उन्होंने यूनिक्स का बेस लिया और एक नया कर्नल बनाया जिसका नाम रखा लिनक्स एंड इसको ओपन सोर्स कर दिया। इन 1993 इन्होंने जो कोड लिखा था वो अराउंड 10,000 लाइन्स का था, 10,200 समथिंग लाइन्स का। अब इधर हमको शेल स्क्रिप्ट 5 लाइन के लिखने बोले तो पसीने छूट जाते। तो वो आदमी ने 1993 में 10,000 लाइन का एक लिनक्स का कर्नल लिखा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कर्नल, राइट? द सेम इन योर बॉडी यू हैव ब्रेन इज योर कर्नल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं कर्नल। तो ये ब्रेन बनाने का काम किसने किया? लाइनस टोरवाल्ड ने इन 1993 में। एट दैट टाइम ही रोड द कोड ऑफ अराउंड 10,000 to K समथिंग लाइन्स, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, इन 1993। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया। बट इसके पहले भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जस्ट आई वांट टू शेयर विद यू। जब इन्होंने लिनक्स का कर्नल बनाना चालू किया, इन्होंने लिनक्स के कर्नल पे काम करना चालू किया, तो उनको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी। जब इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदी वो $4,500 डॉलर्स में उस टाइम खरीदी 1993 में। तो ये पागलपन देख रहे हो? अगर अभी के रेट से अगर मैं $4,500 को मल्टीप्लाइड बाई 70 करूँ तो भी कितने पैसे हो गए, राइट? तो उन्होंने ये 1990 अराउंड 2 में जब भी खरीदा, इसका बेस लेकर एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई जिसका नाम रखा लिनक्स एंड इसको क्या कर दिया, लिया और इसको ओपन सोर्स कर दिया। नाउ व्हाट डू मीन बाय ओपन सोर्स, राइट? ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स लेट से तुमने कुछ एक सॉफ्टवेयर बनाया एंड यू वांट फ्री ऑफ कॉस्ट इट शुड बी यूज बाय n नंबर ऑफ पीपल्स। फ्री में लो, मैं बना रहा हूँ, तुम फुकट में यूज करो। तो इन्होंने क्या किया? लिनक्स का कर्नल लिया और इसको ओपन सोर्स कर दिया, राइट? एज सुन एज इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया तो ये बाकी सब चोर लोगों ने क्या किया? लिनक्स का कर्नल लिया और इसके ऊपर नई नई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चालू कर दी। इन्होंने चालू कर दी। अब हम उसको बोलते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इन शॉर्ट उसको बोलते हैं लिनक्स डेस्ट्रो, राइट? तो कितने लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है? तो रेड हैट विच इज अ पेड वन, सेंटोस विच इज एब्सोल्युटली फ्री, काली लिनक्स विच इज ऑल्सो फ्री, सोलर इज पेड, HP यूनिक्स इज पेड, फेडोरा इज ऑल्सो फ्री, उबंटू इज ऑल्सो फ्री। नाउ देर आर टू वर्ल्ड्स, वन इज अ सर्वर वर्ल्ड एंड अनदर वन इज डेस्कटॉप वर्ल्ड, राइट? दिस ऑल अब ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर, मतलब ये सर्वर वर्ल्ड में आती है। उबंटू हम मोस्ट ऑफ द टाइम डेस्कटॉप वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, राइट? बहुत से लोगों के पास, आई बिलीव दैट बहुत से लोगों के पास उबंटू भी हो सकता है, बट विच इज़ ए लिनक्स दैट यू हैव। बट उन्होंने क्या किया? लिनक्स लिया, उसके ऊपर कुछ तो और प्रोग्राम कर दिया और उसको UI में आपको लाके दे दिया। वाई? बिकॉज यू आर हैबिचुअल ऑफ लिनक्स। सो हमने थोड़ी सी लिनक्स की हिस्ट्री देखी। नाउ वील स्टार्ट विद द लिनक्स इंस्टॉलेशन। फॉर दैट वी हैव सम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड विद अस। लेट मी जस्ट ओपन दैट डॉक्यूमेंटेशन। सो अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है, राइट, तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको प्रीरिक्विजिट क्या है? Let me just scroll it up. So before getting into the installation, I'll just want to, चलो ठीक है, हमारे पास है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? दिस इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम, वी यूजुअली कॉल इट एज विंडोज, जो अभी हमारी करंट सेटअप की बात है, तो हम इसको नाम नीचे देते हैं। दिस इज माय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? दिस इज माय हार्डवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक से लैपटॉप, एंड लैपटॉप के ऊपर मैंने डाल दिया इसको एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ can you do the dual boot on the single? Yes, you can do. Can you install on the Linux on the top of Windows? You cannot directly install it until and unless you have something like you have some software, virtualization software. So in this case we are going to use OVM, Oracle Virtual Machines, right? तो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रही है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। According to diagram we have installed Oracle VirtualBox. This is Oracle VirtualBox that you need to install, and on the top of Oracle VirtualBox you can install another operating system. लेट्स से इन दिस केस CentOS। तो हम इसमें आज CentOS डालेंगे, राइट? सो अब इसको डाउनलोड कैसा करना है? यू कैन फॉलो दिस डॉक्यूमेंटेशन। आपको Oracle VirtualBox में जाना है, डाउनलोड्स में, और एक exe डाउनलोड होगा, उसको डबल क्लिक करके रन। तो ये ऐसा एक Oracle VirtualBox आपको मिल जाएगा, राइट? नाउ the second thing, I want to create one operating system. So how do I do that? So for that you need to ask some question to you, right? Okay, I want to install. So but what is the prerequisite to get it installed? So first thing that you need, you will require the operating system, right? But which operating system? I say Linux. Okay, but which distro? So let us come to this point यहाँ पर। अब जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की, हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक रेड हैट है, सेंटोस है, काली लिनक्स है, सोलरिस है, HP यूनिक्स है, फेडोरा है, उबंटू है, एंड मेनी मोर, राइट? तो we are specifically we are going to stick to only CentOS. Why CentOS? Because it's free. तो अभी अपने को पैसा पे करना पड़ेगा किसको? नहीं, राइट? इफ आई गो टू द रेड हैट तो मुझे रेड हैट को पैसा पे करना पड़ेगा। नाउ व्हाई रेड हैट?
and why CentOS only, why not Kali Linux, why not Solaris? So अगर हम सर्वर वर्ल्ड की बात करें ना, तो मोर देन 85% ऑल सर्वर्स आर रनिंग ऑन दिस रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम. अब CentOS का रेड हैट का एग्जैक्ट रेप्लिका CentOS है, राइट, बट इट्स एब्सोल्युटली फ्री. But when it comes to Red Hat, it's a paid version. You cannot do anything until and unless you purchase the license from the Red Hat. तो हमने क्या किया, हमने चुपचाप CentOS लिया. क्यों? Why? Because it's a free and it is being used all over the world around 85%, right? So that's why we have chosen the CentOS. So okay, so now I want to download the CentOS. So what I'll do, I'll just copy this link. I'll go to the browser. I'll open this link. कोई भी एक लिंक को क्लिक करो, बैड गेटवे, राइट. यहाँ पर आपको एक उसकी रेपोजिटरी मिल जाएगी. नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं. लाइक एक ISO इमेज हमें डाउनलोड करना है. सो वी विल डाउनलोड द मिनिमल ISO इमेज विच इज़ ऑफ 1 GB. अगर आप साइज़ के बारे में देखते हो, हर एक ISO इमेज की साइज़ देखो, इसकी कितनी 4.5 GB, ये 1.4 GB, ये 1.9 GB, दिस इज़ 1 GB, ये कुछ तो 9 GB की है. तो मिनिमल मतलब सबसे कम, जिसमें सबसे कम पैकेजेस इंस्टॉल होंगे वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हम डाउनलोड करेंगे. तो दिस इज़ ऑलरेडी बिन डाउनलोडेड एट माई सिस्टम. लेट मी शो यू. Yeah, this disk is ISO image which is already been downloaded at my system. If I open the property, this is ISO file, right? So this has already been downloaded. So now next thing is you will have to create the operating system on the top of Oracle VirtualBox. ये diagram को थोड़ा ध्यान में रखो with this, okay? Right, so we'll start with the installation. So first आपको जाना है tools पे. If you follow this documentation, you can easily install Linux operating system on the top of this. But since we are recording this, we are doing it again. So click on new, give it a name as a My Linux, whatever you want, but make sure there is a Linux word in the your name. If I remove the Linux or if I cancel this and if I click on the new, you can see यहाँ पर Windows है, right? If I type my, ये Windows change होगा. As soon as I type Linux, ये change हो गया, right? So make sure type and version should be Linux, which should be 64-bit. I'll say click. मेरे को यहाँ मेमोरी देनी है. Let's say I'll give 4 GB of memory. मुझे यहाँ पर 8 GB का डिस्क लेना है. ओके, क्रिएट VDI, नेक्स्ट, डायनामिक एलोकेशन, नेक्स्ट, 8 GB का डिस्क लेते हैं, नेक्स्ट, एंड लेट्स से क्रिएट. नाउ अभी तक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी तक आपने लिनक्स को इंस्टॉलेशन चालू नहीं किया. नाउ यू विल हैव टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. सो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. So here it will ask you for the ISO path. So you need to click on this folder and you will have to locate that path where your ISO image is present. Just then click on start button and your installation will be started. So installation nowadays is a deprecated thing, but still we are learning this because most of the things are getting covered in the installation. तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, CentOS इंस्टॉल एंड मीडिया चेक करो. तो इफ़ यू वांट यू कैन टेस्ट द मीडिया. ये क्या करेगा, आपका अंडर द हुड आपका ISO इमेज को स्कैन करेगा, देखेगा कुछ करप्ट हुआ या क्या हुआ है. नहीं तो सीधा इंस्टॉल. आई नो दैट देयर इज नो इश्यूज विथ माई ISO image. As soon as I click on CentOS, new installation will be started. So nowadays most of the people are trying to practicing on the cloud machines, but cloud machines क्या है ना, फ्री नहीं आ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं तो पैसे पे करने पड़ रहे. तो बेटर है हम ये Oracle VirtualBox डाउनलोड करें, उसमें लिनक्स इंस्टॉल करें, जब चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सो यू विल हैव टू सिलेक्ट यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट विच इज़ द स्टैंडर्ड. क्लिक ऑन कंटिन्यू. अब हम लिनक्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, राइट, विच इज़ नीडेड. So it will take a minute, not more than that. Yeah, now click on date and time. Here you will have to select our region, so India. So as soon as I click on India का map, तो यहाँ पर एशिया और कोलकाता आएगा. डन बटन यहाँ पर, you need to click on the done button. Now installation source, just verify the CentOS 7. It's okay. Now installation selection should be the minimal. That should be fine. Now here network and host name. Here you need to change the host name. अब हम लाइक माय नेम इज संदीप एंड सबका हर एक किसी का नाम होगा, राइट. सो लिनक्स में भी हम मशीन को नाम देते, तो उस नाम को हम लोग बोलते हैं होस्ट नेम, राइट. आई एम होस्ट, यू आर होस्ट, एवरीवन इज होस्ट, एंड ईच होस्ट हैज़ डिफरेंट नेम्स. सो लेट्स से दो बंदों का नाम सेम होगा. अगर एक बंदे का नाम जाकिर है, दूसरे बंदे का भी नाम जाकिर है, तो उनके सरनेम अलग हो सकते हैं, राइट, या फिर उनके फादर नेम अलग हो सकते. तो सेम थिंग हम सर्वर वर्ल्ड में भी हम करते हैं. हर एक होस्ट को नाम देते हैं, हर एक मशीन को नाम देते हैं, जिस नाम को हम बोलते हैं होस्ट नेम. सो हम इसको नाम देंगे cloud ethics.com. I say apply. Now I'll have to
click on this. As soon as you click, your ethernet port will विल गेट टर्न ऑन. अब इथरनेट पोर्ट क्या है, अब भी आपने लैपटॉप में देखा होगा कि अगर आपने इंटरनेट लिया तो एक वो कैट 45 का एक आपको कनेक्टर घुसाड़ना पड़ता है. जिस पोर्ट में आप घुसाड़ देना उसको बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट. जिस पोर्ट में आप उसको प्लग इन करते हो उसको बोलते हैं हम ईथरनेट पोर्ट. So don't get confused with that. This is just a small setting that you need to do. Automatically connect this network when available. Click on the save, click on the done button, and you are done. So now here, this is the important topic. There are two options. Now what do you mean by partitioning? First let us understand what do you mean by partitioning. So हम partition क्या करते हैं? So I have, let's say I have this disk. मैंने डिस्क का साइज कितना दिया, अराउंड 8 GB, राइट. सो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशनिंग? पार्टीशन करना मतलब लेट से मेरा एक घर है, मुझे पार्टीशन करना है तो एक घर में 2 टुकड़े कर दूंगा, एकदम सिंपल लेमन स्टाइल में. अब मुझे हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना है, मुझे हार्ड डिस्क के भी टुकड़े करने हैं. सो दिस इज माई फर्स्ट टुकड़ा, दिस इज माई सेकेंड, दिस इज माई थर्ड, फोर्थ, जो भी है, राइट. तो अगर यहाँ पर ये हमको क्या कैपेबिलिटी दे रहा है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर द पार्टीशन और आई विल कॉन्फिगर द पार्टीशन. बट हम वी आर हियर टू लर्न द लिनक्स. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉन्फिगर द पार्टीशन. आई नीड टू break the hard disk. So if I'll select this option, click on done. As soon as I click on done, there is new window, it will get open. You need to select standard partition. Will come up with all this point, what is LVM and what is standard partition. But at the moment just select the standard partition, click on the plus. Now अभी आपको एक न्यू विंडो लॉन्च हो गया, उसने आपको कहा कि आपको यहाँ पर टुकड़े करने हैं, राइट. तो मेरे फर्स्ट टुकड़े का नाम है बूट. अब मैं बूट को दे रहा हूँ 500 MB एंड आई विल ऐड द माउंट पॉइंट. सो माई माउंट पॉइंट इज एडेड. सो मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, उस पार्ट को मैं बोल रहा हूँ स्लैश, मैंने उसको दिया 3 GB का. आई सेड एट द माउंट पॉइंट. अगेन आई नीड टू क्रिएट वन मोर पार्टीशन. सो लेट्स से var विच इज ऑफ 2 GB, राइट. एज सुन एज यू एंटर्ड द स्पेस, आपका टोटल स्पेस से अवेलेबल स्पेस आपको दिखाई देगा, जो ये डिडक्ट करके आपको दिखाई देगा, राइट. सो मुझे और एक और पार्टीशन करना है होम, वो भी मुझे 2 GB का करना है. I'll say add the partition. Now still I have 1 GB left. So what I'll do, I'll create one more partition, swap, which is of 1 GB. तो मैंने कितने partitions create किए? boot slash var home and swap that window once again. Now if you click on the home button, you can see something called file system is XFS. Same for the boot, same for the slash var, right? Same for the home slash boot slash var slash. But when you click on the swap, the file system is swap. So make sure the swap is itself a file system, right? So we will come to the what do you mean by file system, और हम उसके ऊपर आते हैं. बट अभी के लिए इतना समझ के चलो कि देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम. वी हैव आवर टुडेज गोल, file system and file system hierarchy that we will learn. So there are multiple types of file system like ext2, ext3, ext4, xfs, swap, brtfs, nfs, और बहुत सारी है. अगर हार्डवुड वर्ल्ड में हम देखेंगे तो HDFS इज ऑल्सो फाइल सिस्टम. सो विल कम टू व्हाट डू यू मीन बाय ext2, ext3, ext4. बट व्हाट डू यू मीन बाय फाइल सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फाइल सिस्टम, दैट वी विल कम टू दैट पॉइंट. थोड़ी देर में हम आएंगे उस पर, राइट. आई विल क्लिक ऑन डन and I'll accept the changes and I'll begin the installation. As soon as you begin the installation, so there is a new window, it will get opened, and on that window you will be asked for the create the user root password and another user creation. So yesterday same thing that we have discussed. In Linux there are 3 types of user. One is a super user, another is a system user, and third one is a normal user. So what do you mean by super user? Super user is a root which is created at the time of OS installation. What do you mean by system user? Which is created at the time of any new software installation. And what do you mean by normal user? Normal users are created by the super user. Now what is the difference between super user, system user and normal user? Super user is like a father in your house. He has all the authority to do whatever you want. You cannot ask your father that why you are doing this. No, you cannot. Otherwise you will be out from the home. System user is kind of your mummy, right? जो डैडी से शादी किया एंड वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया. नाउ नॉर्मल यूजर इज क्रिएटेड बाय सुपर यूजर लाइक यू एंड मी. वी आर द नॉर्मल यूजर. वी डू नॉट हैव एनी राइट्स टू से पापा ये क्यों कर रहे हो, नो, सीधा बाहर जाओगे, राइट. सो दिस इज काइंड ऑफ नॉर्मल यूजर. सो अगेन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूजर्स इन लिनक्स, सुपर यूजर, सिस्टम यूजर एंड नॉर्मल यूजर. तो अभी यहाँ पर हम वो क्या बोल रहे हैं कि रूट यूजर को आप पासवर्ड सेट करें. तो रूट यूजर कभी इंस्टॉल होगा, रूट का पासवर्ड मैंने रूट ही रखा है, राइट. मैं यहाँ पर डन कर रहा हूँ, डन, पासवर्ड इज सेट. नाउ सुपर यूजर इज क्रिएटेड, राइट. सिस्टम यूजर हम स्पेसिफिकली कभी बनाते नहीं. वी कैन नॉट क्रिएट द सिस्टम यूजर
which are automatically getting installed at the time of any software installation on the Linux. But normal user कौन बनाएगा? सुपर यूजर बनाएगा, राइट? सो अब ये तो सुपर यूजर के लिए हो गया. अब यूजर क्रिएशन, तो अब मुझे लेट से मुझे एक यूजर बनाना है, तो आई विल क्रिएट वन यूजर. राइट, मैंने एक यूजर बनाया, यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी सेम. मैंने लिनक्स सिस्टम में दो यूजर, एक सुपर यूजर बनाया. सुपर यूजर कभी बनता है? एट द टाइम ऑफ operating system installation. This is optional. If you want to create at the time of installation any single user that you can create, and you can create n numbers of users or multiple users once your operating system is installed. So we have learned that there are three types of user in Linux: super user, normal user and your system user. अब यहाँ पर कुछ packages and software install हो रहे, right? So meanwhile we'll focus on the other topic. So if you notice this, there are some performing post installation setup tasks. So कुछ तो ये under the hood कुछ task ये perform कर रहा है, right? So we'll wait for some time and see. So here I'll again draw the hard disk के जो हमने टुकड़े किए थे ना, जो अब हम लिनक्स की भाषा में बोलेंगे उसको, तो हम उसको बोलेंगे पार्टीशन. तो पहला पार्टीशन था मेरा /boot, दूसरा था /, तीसरा था मेरा home var and swap. Make sure that I am not writing / in front of swap, right? Why? Because swap is itself a file system, right? So boot का size कितना था? 500 MB, right? / is also around 3 GB, home 2 GB, var is also 2 GB and swap is 1 GB, right? तो अगर हम इसकी फाइल सिस्टम की बात करें, राइट, व्हाट इज द फाइल सिस्टम ऑफ बूट XFS, राइट? सेम चीज़ इसके लिए भी है. व्हाट इज द फाइल सिस्टम ऑफ मेरा /XFS वार का XFS एंड स्वैप का क्या है? XFS नहीं, स्वैप itself फाइल सिस्टम. सो व्हाट इज द फाइल सिस्टम ऑफ स्वैप? Again, why? Because swap is a file system. Let me go to that window. It is still taking time to perform some post installation step, so it will take 2-3 minutes, not more than that. There are multiple types of file system: ext2, ext3, ext4, XFS, swap, brtfs and nfs. So हम सिर्फ इनको लेते हैं, brtfs और nfs को थोड़ा निकाल देते हैं out of the discussion. अब सिंपल सा क्वेश्चन है, what do you mean by file system, right? What do you mean by file system? फिर से हम हमारे एग्जांपल में जाते हैं, राइट? सो आई हैव परचेस वन लैपटॉप, राइट? आई नीड टू स्टोर some photos in my hard disk. Can I do that? No, you cannot do that. For that, as I said, you need operating system. Okay, मैंने operating system as soon as डाला. Operating system को कुछ डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर करना है. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट डायरेक्टली स्टोर एनीथिंग इनटू द हार्ड डिस्क, राइट? सो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि मैं एक फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा ऑन द टॉप ऑफ हार्ड डिस्क, सो दैट आई कैन पुट द फोटोज दैट यू आर गोइंग टू पुट इनटू दैट डिस्क और दैट पार्टीशन, राइट? सो अगर हार्ड डिस्क में कुछ स्टोर करना है तो उसके पहले आपको लगेगी फाइल सिस्टम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम इज अ सिंपल फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. बट ये फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ता है? एक फाइल सिस्टम इसके ऊपर बनानी पड़ती है. सो दिस इज अगेन फाइल सिस्टम. ये फाइल सिस्टम हम हार्ड डिस्क के ऊपर बनाएंगे. सो इन दिस केस, अगर इफ यू नो दैट, हम एक जगह पे उसने हमें पूछा था कि कौन सी फाइल सिस्टम से मैं इसको फॉर्मेट करूं, हम थोड़ा सा देखते, बट हम सिर्फ ये समझते कि फाइल सिस्टम क्या है. फाइल सिस्टम इज अ काइंड ऑफ file and directory structure. Can you store anything in raw hard disk? No, you cannot store anything until and unless you format that disk. Now what do you mean by formatting? Today's goal. Okay, now what do you mean by formatting? So new word, you must have heard this word if you are working in the IT industry. नहीं मुझे डिस्क फॉर्मेट करनी है, राइट? सो व्हाट डू मीन बाय फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि डिस्क को फॉर्मेट करो. डिस्क को फॉर्मेट करो मतलब डिस्क के ऊपर फाइल सिस्टम डालो. पुट द फाइल सिस्टम ऑन डिस्क. डिस्क मतलब क्या अपने केस में HDD. अब मुझे फाइल सिस्टम डालनी है हार्ड डिस्क के ऊपर, राइट? तो मैं क्या करूँगा? उसको फॉर्मेट करूँगा. तो लिनक्स में तरीके फॉर्मेट करने के जो हम एक थोड़ी देर में देखेंगे. मीनवाइल ये इंस्टॉलेशन खत्म हो गया. सो as soon as your installation is completed, it will ask you to reboot the system. So I'll click on the reboot. You will say some failed error. Don't bother with the error, just let it run and आपकी Linux operating system will get started. Meanwhile, I'll just come to this point.
सो लेट से मुझे हार्ड डिस्क में कुछ तो डालना है, तो अगर मुझे हार्ड डिस्क में कुछ डालना है तो मुझे सबसे पहले मुझे हार्डवेयर से बात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिनक्स डालना पड़ेगा. ओके, आई हैव इंस्टॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ आई वांट टू पुट समथिंग इन द हार्ड डिस्क. नो, यू कैनॉट डायरेक्टली, ऑपरेटिंग सिस्टम cannot directly put anything in the hard disk. For that you need a file system. Okay, I have file system XFS. अपने केस में क्या है, XFS, this one, right? तो मैंने सोच लिया कि चलो मुझे XFS से डिस्क XFS फाइल सिस्टम यूज़ करूँगा और मैं डिस्क में डाल दूंगा, राइट. बट XFS आपको डिस्क पे डालने के पहले आपको डिस्क क्या करना पड़ता है, डिस्क को करना पड़ता है फॉर्मेटिंग. तो उसकी कुछ कमांड्स है, विल सी दिस इन सम टाइम. आई होप आपको फाइल सिस्टम समझ में आया होगा.